Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing fine. I am Amreen Ahmed, your course instructor, and today we'll be resuming our chapter number 2, that is using the scientific method. I hope you must have gone through all the lectures, and to recapitulate the previous lectures, let me tell you that this chapter is all about using the scientific method. What is scientific method? I told you in the very first lecture that scientific method is a methodology or the process of making things believable. Like in science, the scientists, they don't believe each and every phenomena blindly. They rather test it, they rather experiment on it, and if they find it right, they would say it right, or they would accept it, otherwise they won't. The writer is of the opinion that because of the scientific methods and because of the discoveries in science, we have changed our lifestyle for better. We have controlled number of diseases, because of which the mortality rate has been decreased, and there is better sanitary condition. Nowadays we get water at our home, and we can dispose of the waste quite in a quite better manner. Now we'll be continuing the chapter from more food and better food. Dear students, this is page number 5. You must open your book and follow me. More food and better food. Changes have taken place too in our eating habits. Though the use of science, we have learned that it is helpful to eat many kinds of food, and we have learned how to provide ourselves with a variety of food throughout the year. Now, writer is of the opinion that as number of other things have changed, we have also changed our eating habits. हमारे खाने पीने के तरीक़ेकार भी जो हैं वो चेंज हो गए हैं, और हमें साइंस ये बताती है कि वैरायटी ऑफ फूड खाना जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बनिस्बत इसके कि आप एक ही फूड को मुस्तकिल जो है वो खाते जाएं. Why variety of food is so beneficial for the health? Because variety of food or different foods give you different nutrients. For example, if you are eating vegetables, you are getting minerals. If you are eating eggs and meat, you are getting proteins. And if you are taking fats, then you will be taking vitamins. So actually, variety of food ensures our health. Now, science has also provided us the ways through which we can get food through a variety of food throughout the year. Nowadays you can see that there are number of food or number of vegetable which are available throughout the year. आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा कि आप देखें जैसे क्यूकम्बर है, वो हमें पूरे साल मिल जाते हैं. प्याज, टमाटर, ये हमें पूरे साल अवेलेबल होती हैं ये सब्जियां. या आप देखें बहुत सारे और वेजिटेबल्स हैं. गाजर पहले सिर्फ सर्दियों में होती थी, अब हमें गर्मियों में भी मिलती है. व्हाट मेड इट पॉसिबल? It was because of the scientific invention. क्यों हम आज जो है वो हर चीज़ मिल जाती है हमें? बिकॉज हमारे पास अच्छे स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास कोल्ड हाउसेस होते हैं, कोल्ड रूम्स होते हैं, या हमारे पास कोल्ड स्टोरेज होती है जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें जो है वो सेव कर लेते हैं. और वो किस लिए पॉसिबल हुआ, किस तरह पॉसिबल? दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक एडवांसमेंट. People who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today, but they could not have as many different kinds of food. वो ये कहते हैं कि पहले ज़माने के लोग अगरचे खाते हमारे जितना ही होंगे, मतलब देवर ऑल्सो वेल फेड, उनके पास अच्छा खाना होता होगा, लेकिन उनके पास इतनी वैरायटी नहीं होती होगी फूड की जितनी आज हमारे पास है इन टुडेज. Here I will tell you a very interesting fact, and दिस फैक्ट इज़ एक्चुअली इन कंट्रास्ट विद द राइटर्स ओपिनियन. यहाँ राइटर के ओपिनियन से थोड़ा कंट्रास्ट करेंगे, थोड़ा सा मतलब डेविएट करेंगे, या क्या कह लें आप, हम इसको एक डिफरेंट ओपिनियन देंगे. वो ये कि जो केवमैन था, वो आदमी या वो इंसान जो गारों में रहा करते थे, वो बहुत अच्छी वैरायटी खाया करते थे फूड की.
बाय वैरायटी आई मीन्स द डिफरेंट फूड। वो क्योंकि हंट किया करते थे तो उनको मीट भी मिल जाया करता था, एंड बिकॉज दे हंट डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स दे यूज टू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीट, क्योंकि वो कभी वो उनको जो जानवर मिलता था अवेलेबल होता था वो उसको हंट करके खाया करते थे। प्लस दे यूज टू ईट different you can not vegetables, rather a raw sort of edible grass and edible plants। सो उनके पास जो थी वैरायटी ऑफ फूड बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो गोश्त भी खाया करते, मीट भी, और क्योंकि वो वंडरर होते थे, नोमेड्स होते थे, इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, तो उन्हें अच्छी फूड जो है वो मिल जाती थी। देन केम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। फिर जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया और लोग जो है वो गंदम उगाने लगे, मेज एंड बार्ले, दे यूज्ड टू कल्टीवेट ऑल दीज थिंग्स, तो देयर फूड बिकम लेस वेरियस, दैट हैड लेस वैरायटी। जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया तो लोग जो हैं, लोगों के पास अब सिर्फ खाने के लिए पोटैटो या वीट ही था, या वही खाना था जो वो उगाते थे, उनके पास कुछ और मीन्स जो है वो खाने के नहीं थे। तो या तो बहुत पुराना आदमी यानी केवमैन, वो बहुत अच्छी वैरायटी फूड की खा रहा था, और अकॉर्डिंग टू द राइटर, आज का आदमी, द टुडेज मैन, द मॉडर्न मैन, ही इज टेकिंग much variety of food. Most of their food had to be produced on their farm or in their own gardens. Since fresh vegetables could be obtained only during the growing season, people living in the cold climate had none during the winter months. अच्छा जनाब, तो writer is saying that in the olden time, what was the practice? People could only eat those vegetables or those edible things which they were growing in their own fields. वो सिर्फ वही खा सकते थे जो अपने खेतों में वो खुद उगाते थे। यही बात मैंने अभी आपको बताई। तो फिर क्या होता था, when there used to be winter season or harsh weather, or there were droughts and there were no raining, so what happened, there used to be a kind of lack of or the shortage of food, क्योंकि सीज़न जो होता है वो फेवरेबल नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता था कि फूड की शॉर्टेज हो जाती थी, या उन्हें फूड जो है वो ज़्यादा मिल नहीं पाती थी सर्दियों में। थ्रिफ्टी हाउस है प्रिजर्व देयर होम ग्रोन वेजिटेबल एंड फ्रूट बाय केनिंग। अब वो क्या करती थी, बिकॉज people at that point of time, at that in the olden they knew that when winter would come we would not have anything to eat, so what they used to do, they used to preserve food in the summer season। जब समर सीज़न होता था, जब हार्वेस्ट का सीज़न होता था, जब प्लेंटी ऑफ फूड होती थी, तो कुछ अच्छी या कुछ जो मतलब बहुत फुगड़ किस्म की हाउस वाइफ्स थी, वो क्या करती थी, वो चीज़ों को प्रिजर्व कर लेती थी। कैसे? बाय केनिंग। केनिंग मतलब पौने केन के डब्बों में, टिन के डब्बों में पैक कर लेती। पिकलिंग या फिर वो अचार डाल लेती थी जी। एंड फ्रूट्स बाय केनिंग, पिकलिंग और ड्राइंग देम फॉर यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। तो या फिर वो क्या करती थी, वो इसका अचार डाल लेती थी। अचार डालने से मुराद ये कि वो मसाले लगाकर उसको प्रिजर्व कर लेती, या फिर ड्राइंग देम, खुश कर लिया जाता था। पहले ज़माने में लोग गोश्त को, मीट को या सब्जियों को खुश कर लेते थे, और वो भी फिर वो बहुत अरसे तक इस्तेमाल कर सकते थे, या गर्मियों के सीज़न में इस्तेमाल जो है वो हो जाता था। Meats were preserved by salting and drying or by freezing when the weather was cold enough. मीट्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता था? दे यूज टू पुट सॉल्ट इन दैट, वो थोड़ा नमक डाल के और फिर उसको सुखा लेते थे नमक लगा के। या फिर क्या किया जाता था, इफ़ द सीज़न इज़ टू कोल्ड दे कुड फ्रीज इट, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहाँ बर्फ़बारी बेनतहा होती थी, 6 महीने जो है वो मुसलसल बर्फ़ पड़ती थी। तो ऐसे में क्या किया जाता था, बर्फ़ में दबा के भी जो है वो मीट वगैरह को फ्रीज़ कर लिया जाता था। सी फूड्स वर जनरली available only along the coast. Fish and shellfish could be eaten soon after they were caught. Now, seafood जितना भी था, it was only available to the regions which are near to coast or the coastal region where there is river or where there was river or there was ocean। ऐसी जगह पे जहाँ पे river या
पानी का कोई भी सोर्स होता था जहाँ से फ़िश ली जा सकती थी, सिर्फ उन्हीं को सी फूड जो था वो अवेलेबल होता था। And seafood could not be preserved, seafood could had to be eaten इमीडिएटली, ठीक है, उसको प्रिजर्व नहीं किया जाता था। फिशेस और शेलफिश होती हैं, उन्हें फ़ौरन से आपको खाना होता है, जैसे ही आपने उनको पकड़ा और खा लिया। नाउ एन इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट व्हेन विंटर कम्स व्हाट हैपेंस दैट वाटर फ्रीजेस, पानी जम जाता है जब सर्दियाँ आती हैं। तो ऐसा ही होता था पुराने ज़माने में भी। जो जिन जिन लोगों का दारोमदार सी फूड पे होता था, या ऐसी रीजन या ऐसी बस्तियां जो सी के करीब होती थी या रिवर के करीब, सी के करीब होती थी, तो सर्दियों में सी जो है या लेक्स जो है, दे वर ऑल फ्रोजन, सारी जम जाती थी, जिसकी वजह से फूड की शॉर्टेज हो जाती थी। Regardless of where people live today, they can obtain some fresh fruit, meats, and vegetables throughout the year. Now you can see this. Though they were also having much food in the olden time, but their foods were seldom fresh. बहुत ही कम ऐसा होता था वो फ्रेश फूड खाते हो या फ्रेश फूड लेते हो, बिकॉज दे यूज टू हैव फ्रोज़न फूड और केन्ड और प्रिजर्व फूड, क्योंकि ज़ाहिर है एक टाइम पे फूड उगती थी, अगले सीज़न में उन्हें जो फूड खानी होती थी वो फूड पिछले सीज़न ही की होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। नाउ डेज वी कैन हैव फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश मीट थ्रू आउट द ईयर। हमें पूरे साल में किसी भी टाइम पर फ्रेश जो है वो हर चीज़ मिल जाती है। बाय द क्विक फ्रीज मेथड, वेजिटेबल, फ्रूट, सी फूड्स एंड मीट्स ऑफ वेरियस काइंड कैन बी प्रिपेयर्ड सो दैट दे आर बोथ न्यूट्रिशियस एंड एंजॉयबल। क्विक फ्रीज मेथड होते हैं बेटा, जिनसे हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को ऐसे प्रिजर्व कर लेते हैं, एडिबल आइटम्स को, कि ना तो उनका जायका ख़राब होता है और ना ही उनके न्यूट्रिशंस या ग़िज़ाइयत में कोई फ़र्क जो है वो पड़ता है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग फूड्स हैव रिमूव्ड द रिस्क ऑफ डेंजर ऑफ पॉइजनिंग फ्रॉम केन फूड्स, dehydration, or the removal of water from such food as milk, eggs, potatoes, apples has proved a practical method of preservation. Now the writer is saying that by adopting the modern method of preservation of food, what we are able to do, we are able to preserve the nutrients, we are able to preserve the water present in the food, and we can also avoid the poisoning which usually happen when you can the food. Now you can see that we use milk, Tetra Pak milk, these milks can be preserved for 3 months. आप देखें, आप बाहर दूध नहीं रख सकते, 8-10 घंटे भी दूध ख़राब हो जाता है, लेकिन केनिंग का एक प्रोसेस या टेट्रा पैक की पैकेजिंग में हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं 3-3 महीने के लिए। तो ये किस तरह से पॉसिबल हुआ, ये सब का सब हमें साइंटिफिक मेथड की वजह से पॉसिबल हुआ। आवर ईटिंग हैबिट्स are not the only things in our life changed by the use of science, because we have used science to learn more about the process and materials in our surrounding, about the methods of controlling them. We have been able to improve our ways of building houses, our method of communication, transportation, and even the way we spend our leisure time. Now, writer is saying that this is not only the eating habit which has changed, rather we have changed almost every aspect of our life. वो कहते हैं हमने सिर्फ ईटिंग हैबिट ही नहीं चेंज की, बल्कि हमें चूँकि साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा पता लग गया है। नाउ वी नो दैट द मटीरियल विच आर सराउंडिंग अस, व्हाट आर दे, what are the nature of these material, what purposes they could serve। अब हम जानते हैं हमारे इर्द गिर्द जो मटीरियल्स हैं वो क्या हैं और उनके क्या फ़वाइद हो सकते हैं या वो किस तरह यूज़ आ सकते हैं। तो वी हैव गेन द पावर ऑन कंट्रोलिंग दैम। हम अपने इर्द गिर्द जो एक मादी दुनिया है, मैटर की दुनिया है, हमारे पास लाइक माइंस में हमारे पास मिनरल्स निकल रहे हैं, नमक और जनाब डिफरेंट किस्म के सॉल्ट, और हमारे पास सीमेंट्स हैं और हमारे पास लोहा है। सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन मैनिपुलेट, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ है, वी हैव इम्प्रूव्ड अवर वेज ऑफ बिल्डिंग हाउसेज। हमने अपने घर बनाने के तरीक़ेकारों को बहुत इम्प्रूव कर लिया। और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इवन द वे वी स्पेंड अवर लेजर टाइम, हमने अपना ट्रांसपोर्टेशन, हमने अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव किया। और वो ये कहते हैं हमने हत्ता कि वो टाइम भी इम्प्रूव कर लिया है, मतलब वो तरीक़ेकार भी बेहतर कर लिए हैं जिन तरीक़ेकार को यूज़ करते हुए हम अपना लेजर टाइम या एक्स्ट्रा टाइम या जो फालतू टाइम हमारे पास होता है, फ्री टाइम जिसको हम कहते हैं, उसको हम गुजारते हैं।
So guys, let's end it here. We will continue tomorrow from the better attitudes. Until then, Allah Hafiz and take care.